Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 20 of Pakistan Studies for grade 9. This is your Pakistan Studies book for grade 9 by Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar. Student, open your Pakistan Studies book. Today our topic is political reforms. Uh, System of basic democracy, page number 78 and 79. In previous lecture, we have already studied different reforms carried out during the Ayub Khan regime. We have already studied agriculture reforms and economic reforms. Now, in this lecture, we will study political reforms of Ayub Khan government. Now, today our topic is system of basic democracy, बुनियादी जमहूरियत. जो सिस्टम है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ स्टूडेंट, पेज open page number 78 and 79. First of all, open page number 78. System of basic democracies, political reforms. Now, in Ayub Khan introduced a comprehensive scheme of local self-government, popularly known as what? Popularly known as basic democracies. What? Popularly known as basic democracy. The scheme, the basic democracy, was enforced through a detailed law known as Basic Democracy Order 1959 with effect from which day? From 27 October 1929. 1959. 27 October 1959. While introducing it, Ayub Khan pointed out that Western democracy could not be transplanted or imposed upon a soil that was not prepared for its healthy nourishment and growth. Ayub Khan ने political reforms लाए, bring political reforms in Pakistan. He thought that parliamentary system of democracy remained unsuccessful to solve the problem of people of Pakistan. उसने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर फेल हो गया है, वो कामयाब नहीं है. किस चीज के? लोगों के मसाइल हल करने में वो नाकाम हो गए. रिमेन अनसक्सेसफुल. What is mean by parliamentary system? We have already studied parliamentary system, that type of system in which prime minister will be head of the government and president will be the head of the state. In parliamentary system, PM has vast authority. यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज्यादा इख्तियारात वजीर आजम के पास होंगे, सदर बराए नाम होगा, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का मेंबर होगा और पार्लियामेंट ही इनको इलेक्ट करेगी. Now, under 1956 Constitution, we have given such a power to the President which negate the principle of the principle of democracy. हमने 1956 Constitution में फिर सदर को कुछ इसी तरह इख्तियारात दी कि वो प्रिंसिपल ऑफ जो डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसकी निगेशन कर रहा है. किस तरह कि हमने इख्तियारात दी कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट, वो वजीर आजम को हटा सकता है. तो किस तरह ये पार्लियामेंट्री सिस्टम रहा? आप तो कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल हो गया. यहां पर आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू ही नहीं किया था सही तरीके से, तो किस तरह अनसक्सेसफुल रहा? आपने जमहूरियत को प्रिवेल नहीं किया था यहां पर, तो किस तरह लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हो गया? तो ये उसकी सिर्फ सोच थी यही कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल हो गया. आपने इनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया है. Now, in his opinion, parliamentary system of democracy was not suitable for the countries like Pakistan because on one side there was lack of political awareness. He also said that the parliamentary system of democracy is not suitable for the countries like Pakistan
that there in Pakistan there was lack of political awareness among the masses, and on the other side there was poverty, ignorance and illiteracy. कि यहाँ पर तो लोगों में सियासी शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से ये यहाँ पर हम इन ये सुटेबल नहीं है, मुनासिब नहीं है इसलिए पाकिस्तान के लिए। तो दूसरी साइड पर पॉवर्टी है, गुर्बत है, इग्नोरेंस है, जहालत और जो इलिटरेसी तालीम की जो कमी है यहाँ पर, तो इसी वजह से ये यहाँ पर नरिशमेंट नहीं कर सकते, ये यहाँ पर सुटेबल नहीं है पाकिस्तान जैसी कंट्री की। अब जो उसने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल हो गए, तो उसने कौन सा सिस्टम यहाँ पर इम्पोज किया? विच सिस्टम इम्पोज अयूब खान इन पाकिस्तान? अयूब खान introduced new system, and that system name was what? System of basic democracy, implemented in October 1959 in the country. 1959 अक्टूबर, ये हाईलाइट करें, अक्टूबर 1959 में उसने इम्पोज किया बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम कंट्री में। असल में बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम क्या था? ये लोकल गवर्नमेंट थी। लोकल गवर्नमेंट जो मुकामी हुकूमतें हैं, यानी टू गिव अथॉरिटी टू दी लोकल पीपल एट ग्रास रूट लेवल, कि लोगों को अथॉरिटी देना, कहां पर? ट्रांसफर ऑफ पावर एट ग्रास रूट लेवल, उसकी जो पावर है आप उनको ग्रास रूट लेवल तक ट्रांसफर करना है। यानी किस तरह हम देखें फेडरेशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट फेडरल पे उसकी डिवीजन जो होती है वो प्रोविंस को देती है पावर, प्रोविंस पे डिस्ट्रिक्ट्स को देती है, और यही डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है जो आपको यूनियन काउंसिल यानी नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक जो आपकी नीचे सतह पर होती है उनकी ट्रांसफर होती है पावर की। Objectives of local government was that basic democracy was that to mobilize the people, especially in the rural areas, for which purposes? For the development activities, and to give a sense of active participation in local affairs. लोगों को सेंस देना है, किस चीज का सेंस? कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, किस चीज में? मुकामी जो आपके अफेयर्स हैं उसी में। ये आपके जो लोकल गवर्नमेंट हैं ये आपकी मसाइल हल करते हैं आपकी डोर स्टेप्स पर। आप ही की जो यूनियन काउंसिल का ये मेंबर होगा, आप इनको वोट देंगे। तो जो सिस्टम है, यानी आप हमारी जो आजकल एमएनएज और एमपीएस हैं, तो हमें वहां पर फिर जाने की जरूरत नहीं है, हमारी मसाइल हमारी लोकल रिप्रेजेंटेटिव हल करेंगे। तो यही है कि आपने ट्रांसफर करने हैं इसमें पावर ग्रास रूट लेवल तक, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक। तो अयूब खान ने भी उसी तरह बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंप्लीमेंट किया, मुकामी लोगों तक पावर मुंतकिल कर दिया। किस तरह ये सिस्टम किस तरह काम करता था? ये सिस्टम जो लोकल गवर्नमेंट था, that start from the downward and went upward, started from downward and went upward, आपकी ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाती। From where this system had four stages, started from union council, from downward, here is union council, आपकी जो नीचे यूनियन काउंसिल होती है, फिर उससे थाना या तहसील काउंसिल ऊपर जाएं, went upwards, जो ग्रेजुअली अपवर्ड की तरफ जाता है। पहले नीचे यूनियन काउंसिल, फिर तहसील काउंसिल, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट, फिर इससे डिवीजनल और प्रोविंशियल जो सूबे की तरफ, यानी यूनियन काउंसिल से लेकर फिर तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर प्रोविंशियल, सूबाई, डिवीजनल और सूबाई सतह तक ये काउंसिल जाती है। तो देख ली यहाँ पर ये कौन सा सिस्टम है? स्टार्टेड फ्रॉम डाउनवर्ड्स एंड वेन अपवर्ड्स, तो ये डाउनवर्ड है नीचे की तरफ से और जाता है सूबाई सतह तक अपवर्ड। दैट इज द सिस्टम व्हिच अयूब खान इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर 1959। इसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें इलेक्शन किस तरह होता है
थ्रू किस तरह इलेक्शन होते, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. Now, what was the aim of this system? What was the aim of basic democracy? Basic democracy का मकसद क्या था? The main aim of this system were the following. Number one, to provide opportunity for the development at local or basic level. Opportunity फराहम करना किसको, किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट, तरक्की के लिए लोकल, जो मकामी या बुनियादी सतह पर होती है. नीची सतह पर लोगों की जो तरक्की हैं उनको मौक़े फराहम करना, तरक्की के मौक़े फराहम करना, ताकि जो मासेस हैं वो जो पीपल हैं वो लोकल अफेयर में पार्टिसिपेशन करें, इनको भी मौका मिले. तो इसका यही एम था कि लोगों को मौका मिले किस चीज़ में? जो बेसिक लेवल है, जो बुनियादी लेवल है, जो ग्रास रूट लेवल है, जो लोकल लेवल है, उसी की तरक्की की, मुकामी सतह पर तरक्की की मौक़े फराहम करना. एक तो यही मकसद था इसका. नंबर टू, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बाय द ब्यूरोक्रेसी. यहाँ पर जो आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव होगी, जो नुमाइंदे होंगे लोकल सिस्टम में, जो आप इनको मुंतखब करेंगे, जो अवामी नुमाइंदे होंगे, तो उनको क्या करेगी ये ब्यूरोक्रेसी, जो आपकी ऑफिसर्स है, जो अफसर शाही हैं, अब जो ब्यूरोक्रेसी हैं, उनकी जो अफसर हैं, वो किसको ट्रेनिंग देगी? इन्हीं नुमाइंदों को, जो आप उनको वोट देते हैं. किस लिए ट्रेनिंग देगी? रिलेटेड टू कैरी आउट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट, कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो काम है, हुकूमत का काम है, किस तरह चलाया जा सके, हुकूमत को किस तरह कर लेना. तो इसी के बारे में जो मुतल्लिका ट्रेनिंग होगी, तो वो इनको कौन देगी? वो ब्यूरोक्रेसी. तो एक मकसद तो इनका है कि नीची सतह पर तरक्की का काम हो, तो ये तो लोकल गवर्नमेंट का एम्स होता है. तो यही जो बेसिक डेमोक्रेसी, ये भी उनका है कि लोकल सतह पर जो आपकी नीची ग्रास रूट लेवल है, उसी में जो मौक़े हैं तरक्की की, वो फराहम करना. दूसरा, ब्यूरोक्रेसी की जो हैं वो आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको ट्रेनिंग देगी. To make agree all public representatives and relevant offices to work together. मुतल्लिका अफसरान और अवामी नुमाइंदों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए मादा करना. जो आपकी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इसमें आप वोट देंगे इन लोगों को, तो वही रिप्रेजेंटेटिव जो आपकी नुमाइंदगी करेंगे, और वो जो इनके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है या मुख्तलिफ किस्म के इनसे रिलेटेड जो वर्क चलाने के लिए होते हैं लोकल गवर्नमेंट का, तो वो और आपकी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको आमादा करना, एग्री करना, मिलजुल कर अवाम के लिए काम करने पर, वर्क टुगेदर, कि वो मिलजुल कर अवाम के लिए, अवाम की डेवलपमेंट के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करें. दैट्स द एम्स ऑफ दिस बेसिक डेमोक्रेसी system, which imposed Ayub Khan in October 1959. Now again, why parliamentary system is not suitable? Ayub Khan had thought that parliamentary system is not suitable for Pakistan because it remained unsuccessful to solve the problems. Because unsuccessful to solve the people problems, lack of political awareness, poverty, इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी. इसी ही वजूहात की बिना पर कि लोगों की मसाइल हरने में नाकाम रहा. लैक ऑफ जो कमी है, कमी लोगों में क्या है? अवेयरनेस नहीं है, पॉवर्टी गुर्बत है, इग्नोरेंस है, इलिटरेसी है. दैट्स व्हाई पार्लियामेंट्री सिस्टम इज फेल्ड इन पाकिस्तान. Now Ayub Khan imposed a new system name was basic democracy system, imposed on October 1959. This was a new political system that started from downward and went upward. क्या है? ये स्टार्ट होता है आपकी
नीची सतह से, यूनियन काउंसिल से स्टार्ट होकर आपकी प्रोविंस तक अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख सकते हैं। ग्रास रूट लेवल से फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन काउंसिल होता है नीचे, फिर ये थाना होता है, तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डिवीजनल। तो यहाँ सर लास्ट में यूनियन काउंसिल, फिर ऊपर क्या होता है थाना या तहसील, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है और फिर उसके ऊपर डिविजनल एंड प्रोविंशियल काउंसिल होता है। तो यानी लास्ट में आपकी जो ग्रास रूट लेवल पर होती है यूनियन काउंसिल होती है, फिर तहसील काउंसिल, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और फिर डिविजनल या प्रोविंशियल काउंसिल। तो इसको हम कहते हैं विन फ्रॉम डाउनवर्ड, start from downward and went upward. That was the system. Now aims of this system: first of all, development at local level, give opportunity of development at local level, मुकामी सतह पर तरक्की की मौके फराहम करना, training to public representative by bureaucracy, and third, agree public representative and opposite to work together for the masses, for the people. मुकामी सतह पर तरक्की के मौके फराहम करना, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से अवामी नुमाइंदों को ट्रेनिंग देना, किस चीज़ की, ताकि वो ये सब कुछ सीख ले, हाउ टू कैरी आउट द होल वर्ल्ड, द होल गवर्नमेंट वर्क फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, फॉर द मास। नाउ थर्ड वाज एग्री पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिसर टू वर्क टुगेदर, दोनों को इकट्ठी करना, किस चीज के लिए, लोगों की काम करने के लिए। नाउ दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। नए लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्शन किस तरह होते हैं इसमें, मेथड ऑफ इलेक्शन की, किस तरह इलेक्शन होते हैं इसमें, और फिर ये इलेक्टोरल कॉलेज बना प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, फिर इसी ही जो काउंसिल थी, यूनियन काउंसिल थी, उसी ने फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ये एक्ट एज ए इलेक्टोरल कॉलेज था। इलेक्टोरल कॉलेज की तरह यानी ये फिर ये जो नुमाइंदे थे ये फिर जाकर किसका वोट देते थे, ये प्रेसिडेंट। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।